welcome to Wealth Wisdom, the podcast where we deep dive into the world of finance, investing, and wealth management. I am your host, Dr. Chiru, and in this series, we are going to go beyond headlines and market trends to bring you honest, insightful conversations with people who have lived and shaped the financial industry. Each episode, we will sit down with industry veterans, visionary fund managers, fintech innovators, economists, policymakers, and even behavioral scientists. Voices who are defining how wealth is built, preserved, and passed on. Whether you are a finance professional, an aspiring investor, or just someone curious about the forces that drive wealth creation, you are in the right place. Wealth Wisdom brings you sharp insights, real stories, and practical takeaways to help you navigate the new era of wealth with clarity and confidence. Because in today's world, wisdom is the best investment you can make. In this episode, we have with us a very special guest, a man who needs no introduction in the world of financial services. He's a veteran with over 25 years of experience in the industry. In his previous avatar, he founded and scaled one of India's largest wealth management firms from scratch to over 3 lakh crores in assets under management. So please join me in welcoming the Chairman and Managing Director of Neo Group, Mr. Nitin Jain. Thank you so much, Chiru. It's a very warm welcome. Thank you. I'll start with a very basic question. When we hear these terms asset management and wealth management, थोड़ा confusing सा लगता है कि wealth is getting managed and what's actually the difference between asset management and wealth management? Actually, बहुत ही interesting question है because I have seen so many people in the industry also sometimes being confused about wealth and asset management. So thank you for asking. आप म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, राइट? सो इफ़ यू थिंक अबाउट म्यूचुअल फंड इज़ अ बिजनेस, इट्स अ एसेट मैनेजमेंट बिजनेस. अब एक फंड मैनेजर है, अगर आप उससे देखें तो वो बहुत सारे पैसे मैनेज कर रहा है, बट उसको ये नहीं पता है कि उसके क्लाइंट्स कौन है. राइट. किसी ने 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, उसकी एज 25 साल है. किसी ने 50 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसकी एज 50 साल है. लेकिन फंड मैनेजर का फोकस क्या है? ये जो पैसे हैं इसका रिटर्न इंडेक्स से बेटर होना चाहिए, है ना? तो अगर पॉजिटिव 10% इंडेक्स ने दिया तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू डिलीवर 11, बट अगर -40 दिया तो ही सेइंग कि मैं -38 करूँगा. म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना. अब एज अ क्लाइंट विल यू बी हैप्पी विद दैट नंबर? नो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो वेल्थ मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो को बनाए कि थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा फिक्स्ड इनकम में, थोड़ा क्रेडिट में, थोड़ा ऑल्टरनेट्स में, जिस तरह से भी. लेकिन ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व फॉर bespoke नीड्स ऑफ अ क्लाइंट. ही इज़ लाइक अ डॉक्टर. अगर आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है बट रीजनेबल है समझने के लिए, तो आप वेल्थ मैनेजर को देखते हो तो आप समझिए वो एडवाइस दे रहा है. मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे उसमें फार्मासिस्ट जो है वो एसेट मैनेजर, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को. दवाई जैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. दवाई जैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये है एसेट मैनेजमेंट. और जो डॉक्टर है जो एडवाइस दे रहा है वो वेल्थ मैनेजमेंट है. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने. So ये जो वेल्थ मैनेजमेंट है, wealth managers are the ones who work with family offices and then the wealthy people and then diversify assets कहाँ इन्वेस्ट करना है. करेक्ट. वो बताएंगे. अभी वेल्दी क्लाइंट्स की बात अगर करते हैं, नॉर्मली हम सोचते हैं तो वी थिंक ऑफ सेलिब्रिटीज या प्रमोटर्स ऑफ लार्ज लिस्टेड कंपनीज जिन्होंने इतना पैसा बनाया है. वेयर डू दे इन्वेस्ट देयर मनी? बिकॉज नॉर्मल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं. डू दे हैव अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल टुगेदर दैट दे इन्वेस्ट इन? हाउ आर दे डिफरेंट? सी, एक चीज़ जो आप, आई एम श्योर इट्स वेरी इंट्यूटिव, कि जिन लोगों के पास 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, या कई बार 1000 करोड़ है, 10 करोड़ है प्लस, आप समझ लीजिए, और कैश फ्लोज भी ठीक ठाक हैं, तो उनकी लाइफ में सेफ्टी कुशन की ज़रूरत कम है. करेक्ट है ना? तो उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है. तो उनका जो मेन एम्बिशन है वो है ग्रोथ. दे आर ट्राइंग टू ग्रो देयर कैपिटल. जबकि जब आप पैसे कमा रहे होते हैं और आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं, तब तक आपको चाहिए है प्रोटेक्शन. राइट. तो इसलिए जो ये क्लाइंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर उनका फोकस ग्रोथ पे होता है. तो आप देखेंगे उनके पोर्टफोलियोज में एक्चुअली में एफडी वगैरह बहुत कम होंगे, अगर होंगे भी तो. मोस्ट क्लाइंट्स दैट वी मैनेज हार्डली दे वुड हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स एज अ कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो.
दे माइट हैव सम लो रिस्क हाई रेटेड बॉन्ड्स इन द पोर्टफोलियो, बट आउटसाइड ऑफ दैट उनके ज़्यादातर एसेट एलोकेशन में आप समझ लीजिए, एक हो गया सेफ्टी बकेट जो छोटा सा है जिसमें आप इस तरह के एसेट्स हैं, दूसरा होता है एक ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल मतलब कि जहाँ पे आप पैसा आप समझ लें मोटा मोटा 5 साल में डबल करें, तो 13-14% की ग्रोथ, उसमें ज़्यादातर इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट बॉन्ड्स एट्सेट्रा, ये पूरा पोर्टफोलियो होता है। और एक 25-30-40% पोर्टफोलियो जो है वो हम लोग जिसको बोलते हैं अल्फा पोर्टफोलियो। अच्छा। उसमें आप कोशिश कर रहे हैं ऑल्टरनेट से, प्राइवेट इक्विटी हो गया, प्राइवेट क्रेडिट हो गया, हेज फंड्स हो गया, रियल एसेट्स हो गया, आजकल इन्वेट्स और रीट्स आप देख रहे हैं वो भी बड़े पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हो गए। यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न में भी 16-17% कमाने की। तो पहले 2 बकेट्स में तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग हैं, हाँ। बट अगर आप तीसरी बकेट की जो आप बात करेंगे उसमें बहुत अनलेस द क्लाइंट इज अबव 10 CR कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो वो एक तरीके से एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला बकेट कह सकते हैं उसको। दैट इज़ ट्रू। हालांकि कोशिश जितने भी ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स की है वो ये है कि कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न बनाना। अच्छा। तो जनरली आप कैसे सोचते हैं कि अगर रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न बढ़ रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। तो हेज फंड्स या फिर प्राइवेट क्रेडिट या फिर प्राइवेट इक्विटी, इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि वॉलेटिलिटी को थोड़ा कम करके कैन यू इंक्रीज द रिटर्न्स। तो उसके लिए स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए। राइट। तो उसके लिए फंड मैनेजर्स जो बहुत ही काबिल और बहुत ही कॉम्पिटेंट है वो लोग ये स्ट्रैटेजीज रन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर विच दे चार्ज परफॉर्मेंस फीस एट्सेट्रा। बिल्कुल अलाइनमेंट होता है कि अगर आपका अच्छा हो रहा है तो उनका भी अच्छा होगा, नहीं तो उनके पैसे नहीं बनेंगे। तो ये आई वुड नॉट नेसेसरली से हायर रिस्क, बट सुपीरियर रिस्क adjusted रिटर्न इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड इट। ये वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री हम अगर देखेंगे एंड कंपेयर इट टू एनी अदर इंडस्ट्री, लेट्स से एन एयरलाइन इंडस्ट्री और अ स्टील इंडस्ट्री, वहाँ पे मुझे क्लियरली इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखता है। बट वेल्थ मैनेजमेंट में वी आर जस्ट मुझे आई एग्जैक्टली नो वेयर यू आर हेडिंग। सो व्हाट इज द प्रोडक्टिव इम्पैक्ट टू एन इकोनॉमी बाय दिस सेक्टर? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बहुत ही पर्सनल है, बट सो मेरी मदर, एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, और मैंने भी IIT से IIM से पढ़ाई की है, तो मेरी मदर ऑब्वियसली हैज़ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी, बट वी आर फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली। तो उनको ना, जब मैं स्टॉक मार्केट में होता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं गैम्बलिंग करूँ। तो वो मेरे से बहुत बार उन्होंने बोला शुरू में, अब तो शायद आई थिंक शी हैज़ अंडरस्टूड कि बेटा आप बहू को देखें, वो डॉक्टर हैं, जान बचाती है, लोगों के लिए इतना कुछ करती है, और आप क्या करते हैं? आपने तो इतनी अच्छी पढ़ाई की, आप कुछ और नहीं कर। तो मैंने उनको आंसर दिया। उस वक्त तो एक हॉस्पिटल में काम करती थी, और मैंने इनको बोला कि देखिए वो डॉक्टर हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल बना ना, उनके जो प्रमोटर हैं उनको ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा मैंने रेज करके दिया। क्या बात है। तो शायद ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड सेगमेंट है। मुझे लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट हमारा मेन पर्पस पता है क्या? सेविंग्स को इंडिया की चैनलाइज करना टुवर्ड्स प्रोडक्टिव एसेट्स। इससे बड़ा जॉब इम्पैक्ट या प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट या GDP इम्पैक्ट और कौन सा सेक्टर कर सकता है? तो कई बार हम लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं समझ पाते हैं, बट अगर इंडिया को ग्रो करना तो मुझे लगता है उसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है रिस्क कैपिटल, प्रमोटर्स। क्योंकि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, काबिल लोगों की कमी नहीं है, बट उन्हें बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? या बिज़नेस को बढ़ाना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो अ लॉट ऑफ दीज फैमिलीज इंस्टीट्यूशंस आर एलोकेटिंग कैपिटल to these productive sectors of the economy, and we are the channel through which this money is getting directed in those places. तो आपने एक बात बोली रिस्क कैपिटल, so is that capital where people are willing to take a higher risk in the prospect of a higher return? Actually, I think I should explain risk capital. अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो 2 तरह के पैसे होते हैं। एक होता है पार्टनरशिप मनी, जिसमें जिसको मैं रिस्क कैपिटल भी बोलता हूँ, कि मुझे लगा कि डॉक्टर चीरू इज़ एक्सेप्शनल एट बिल्डिंग अ बिजनेस, बट डॉक्टर चीरू currently because he is young, he does not have enough capital to build. So I will say कि I can't do this, but Chiru can do this. So why don't I put money with Chiru
and let him start the business. Whatever is the profit, we will share. अच्छा, But whatever is the loss, also we will share. so लग के alongside Alongside आपके काम करें. But Chiru will take this capital and maybe then borrow money from a bank and then build his plant. Okay? लेकिन बैंक तब तक आपको पैसा नहीं दे सकता जब तक कि आपके पास ओरिजिनल रिस्क कैपिटल नहीं है. first check is always the most difficult check. एंड इट इज़ नॉट क्रेडिट, इट इज़ इक्विटी. मतलब कि अगर आपको लॉस हुआ ना तो बराबर का है. बैंक के साथ जो आपने पैसा लिया ना, अगर आपको लॉस हुआ तो आपको तो बैंक को चुकाना है. करेक्ट. तो ये पैसा जो है, यही एंटरप्रेन्योर की एनर्जी है. अगर बिजनेस बनाना है ना तो आपको रिस्क कैपिटल चाहिए. और इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कमी है रिस्क कैपिटल की, काबिलियत की कमी नहीं है. और मुझे लगता है इंडिया को अगर सच में ग्रो करना है तो हमें बहुत रिस्क कैपिटल की ज़रूरत है. सिलिकॉन वैली को देखिए, एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर 20 साल का 21 साल का, उसको बिजनेस शुरू करने का मन है, एक अच्छा आइडिया है, अच्छी टीम शुरू की है, टन्स एंड टन्स ऑफ मनी इज अवेलेबल विद इट्स ओन गार्ड रेल्स एवरीथिंग, लेकिन पैसा अवेलेबल है. इंडिया में वो नहीं है. थोड़ा बहुत है, अगर आप बोलें तो बैंगलोर में वो थोड़ा सा सिलिकॉन वैली कहते हैं उसको, बट बहुत छोटा है. हम लोगों को इंडियन इकोनॉमी को अगर सच में ग्रो करना है, द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर यू शुड फोकस ऑन इज रिस्क कैपिटल. यू गेट दैट राइट, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरह से उस डायरेक्शन में कैपिटल को चैनलाइज करने की, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी हो, चाहे वो वेंचर कैपिटल हो, चाहे वो प्राइवेट क्रेडिट हो, हेज फंड्स. अ लॉट ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज आर promoting job creation in that sense. That's a lot of benefit to the economy and then productive use. Of course. आप 25 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, from 2000 to 2025 यदि आप देखेंगे, a lot of startups have also started and then we have seen them becoming very large companies. साथ में wealth management industry also has grown in proportion. Right. So what are some of the trends that you have seen and where are we headed? In the wealth management Yes, industry. in the wealth management industry. So जब मैंने ये करियर शुरू किया था वेल्थ मैनेजमेंट में, मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 उस टाइम की. उस टाइम पे अभी भी हम लोग का पर कैपिटा अगर आप देखें इंडिया में कितना होगा, $3,000. उस वक्त इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 1000 से बिलो था. तो इंडिया हैड नॉट सीन वेल्थ क्रिएशन, राइट. तो एक्चुअली इट वॉज टू यंग, टू अर्ली टू बी इन द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. तो ज़्यादातर उस वक्त जो आप देखें बैंक्स थे, जो प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो वेल्थ मैनेजमेंट का एक फॉर्मेट रन कर रहे थे, विच आई थिंक वॉज लार्जली फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं और इंश्योरेंस बेच रहे हैं. दीज वर द टू कोर प्रोडक्ट्स जो आप, बट एडवाइजरी नहीं था. मतलब आप ये समझने की कोशिश नहीं करते क्लाइंट का 15 साल, 20 साल, 25 साल का एंड गोल क्या है, IPS, उसके हिसाब से प्लानिंग, ये सब नहीं था. इट वॉज प्योरली मेरे पास ये अच्छा प्रोडक्ट है, मैं क्लाइंट्स ढूंढ रहा हूँ उनको बेचने के लिए. बट आई थिंक 2010, 9, 10, 11, 12 3-4 कंपनी शुरू हुई जिन्होंने उस पीरियड में बहुत अच्छा काम किया. नुवामा हो गया, 361 हो गया, ASK हो गया, और ऐसे कई सारे लोग, 3-4 लोग और, जिन्होंने अच्छे बिजनेसेस बनाए और इंडस्ट्री को सिखाया कि ये बिज़नेस. मुझे याद है उस टाइम पे 2010-11 में जब मैं क्लाइंट से मिलता था, लॉट ऑफ दीज रिच पीपल, प्रमोटर्स एंड ऑल, उन लोगों से जब हम बात करते थे ना स्टॉक मार्केट के बारे में, दिस इज़ प्राइस टू इक्विटी, प्राइस P/E, दिस इज़ प्राइस टू बुक, ये ROE है, ये CAGR है, स्कैरी टर्म्स सारे. तो उनको ना बहुत शौक लगता था ये क्या बातें हो रही, बिकॉज उन्होंने ज़्यादातर पैसा अपना या तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, या फिर FDs में रखा हुआ था. तो उनके लिए तो स्टॉक मार्केट ही बहुत नई चीज़ थी. हाँ. तो दे वर वेरी enamored, and you know the relationship managers were able to add dramatic value because of the differential in knowledge. Right. बट एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई है पिछले 4-5 सालों में. मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लाइंट्स की नॉलेज यहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई है, और जो RMs की नॉलेज मान लीजिए यहाँ थी शायद, हाँ, वो यहाँ पहुँची है. तो अब क्लाइंट की नॉलेज
ज़्यादा है। ज़्यादा हो गई है मुझे लगता है कई बार, जो एक एवरेज आरएम की नॉलेज है। तो अब सडनली आरएम्स आर स्ट्रगलिंग और एडवाइजर्स आर स्ट्रगलिंग टू कीप पेस विद द सोफिस्टिकेशन लेवल। और मुझे लगता है ये डिस्ट्रप्शन शुरू हुआ, ये और एसेंचुएट होगा। इसका कारण क्या हो सकता है? इज इट टेक्नोलॉजी या फिर दे हैव बिकम सीजन्ड इन्वेस्टिंग? एक्चुअली दोनों शायद। एक तो क्या हुआ, पिछले 15 साल से हम सब लोग उनसे बार बार मिलते हैं, तो इतनी सारी 5-5 कंपनी के लोग उनको जाके सब कुछ बोल रहे हैं, तो सीख रहे हैं। दूसरा एक जो मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद सही शायद गलत, मैंने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को जब मैं कंपेयर करता हूँ दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स से, मेरे को ऐसा लगता है रिगर और कैपेबिलिटी में ना, शायद इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आई वुड रेट देम वेरी हाई, मे बी द बेस्ट, और मे बी एटलीस्ट द टॉप 5%। तो उन लोग की समझ बहुत ज़्यादा है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रिच फैमिलीज और प्रमोटर्स हैं ना, उनका क्या होता है कि जब एक बार उन्होंने पैसे बना लिए ना, तो दे डोंट वांट टू फोकस ऑन मनी। दे सेड कि मेरा ये पैसा है, इसमें मेरा वेल्थ मैनेजर पैसे बनाएगा, जो करेगा। दे आर नाउ सेलिब्रेटिंग लाइफ, एंजॉयिंग लाइफ, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियंस आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस। उनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत ध्यान देते हैं। तो उनका सीखने का मन है, और सिखाने के इतने सारे लोग हैं। और जो लास्ट चीज़ है, मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला, टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ख़त्म हो गई है। अब नॉलेज इज़ एट योर फिंगर टिप्स, स्पेशली विद AI कमिंग इन, चैट GPT। जो भी आपको पूछना है, आप कितने भी डिटेल में चैट GPT से पूछ सकते हैं। तो ओपेसिटी जो थी पहले इंडस्ट्री की जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनको जो पता था और जो क्लाइंट्स को पता था, उसमें बहुत गैप था। वो गैप खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस। और बाय द वे मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू ड्रामेटिकली बिकम बिगर इन कमिंग ईयर्स। एंड इसलिए शायद बिजनेस, मोर देन रिलेशनशिप एंड मोर देन सेल्स, विल ऑल्सो बिकम मोर अबाउट नॉलेज एंड रियल कैपेबिलिटी। तो मैं अपनी टीम से भी बहुत, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू compete ऑन नॉलेज। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंडस्ट्री में ये ट्रांजिशन नहीं करेगा, शायद उनको दिक्कत होगी आने वाले साल में। And AI, वैसे भी people are saying that once AI comes in full-fledged, there'll be a lot of job losses. Yes. तो wealth management industry में how is the industry adopting AI, and what will happen to a relationship manager in future? Already we've seen some robo-advisors and tech-first wealth advisors. देखिए, जॉब लॉसेस का तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ह्यूमैनिटी हैज़ अ वे टू इवॉल्व। जब कंप्यूटर्स आए तब भी ये डर था, इंटरनेट आया तब भी ये डर था। AI के सामने नई तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे शायद। प्रोडक्टिविटी लेवल्स ड्रामेटिकली इम्प्रूव करेंगे। बट एक बहुत ही जो कमाल की चीज़ हुई है, और मेरे मन में ये बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग यंग कंपनी हैं, मुझे लगता है पहली बार लेगेसी रिसोर्सेज का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बहुत मैं समझाने की कोशिश करता। जैसे अगर आप बड़े बैंक हैं तो आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स पता है क्या? कैपिटल। आपके पास 1 लाख करोड़ कैश है, एक नई कंपनी है, आपका जो साल का इंटरेस्ट है उसमें तो ऐसी 10 कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। आपके पास 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, कॉल सेंटर हैं जहाँ 50,000 लोग हैं। तो एक नई कंपनी के लिए इतनी बड़ी कंपनी से, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत मुश्किल है। एक नई कंपनी खड़ा करना आज के तारीख में, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज दैट इट रिक्वायर्स, लेट्स से अ बैंक, अगर बैंक चालू करना है मुझे, तो अगर आपके पास 5-10 हज़ार करोड़ नहीं है और कम से कम नहीं तो 1000 लोग नहीं है, तो आप शुरू नहीं कर सकते। लेकिन with AI in the future, and don't think of AI as a static technology. मुझे याद है वो 1990s, अर्ली 1990s, आप लोग तो शायद पैदा भी ना हुआ उस कंप्यूटर्स जो थे ना, इतने क्लंकी थे, बड़े और उस पर टाइप करना बड़ा मुश्किल था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि इससे तो बेटर लिख के हाथ से पहले जल्दी कर सकते हैं।
बट चीज़ें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है। एआई का भी वही जोन चल रहा है। बट आप सोचो एक कॉल सेंटर जिसमें एक भी इंसान नहीं है, एक भी इंसान नहीं, सिर्फ एजेंट्स जो थकते नहीं हैं, जो आप कितने भी गुस्से में बात करें वो गुस्से में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इमोशंस नहीं होते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, और आपकी समझ को, आपके प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं, बिकॉज उनकी नॉलेज इनफाइनाइट है। मैं 50,000 लोग के कॉल सेंटर से compete कर सकता हूँ अगर मेरे अंदर वो काबिलियत है। अब तो फंडामेंटली जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है एआई को अगर ढंग से इस्तेमाल करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डिसरप्ट होंगी, और मुझे लगता है इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड करेंगी। ऐसे मत सोचिए कि ये इंडस्ट्री का साइज़ ये था तो बाकी लोगों का सिर्फ कम होगा। मुझे लगता है ये मल्टीफोल्ड जंप होगा प्रोडक्टिविटी में, साइज़ में, स्केल में, और उसका डोमिनेंट मार्केट शेयर will go to companies where AI is at its core. आपने अपस्किलिंग की बात करी है, दैट्स स्कैरी थॉट बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। आज अगर कोई नया एंट्रेंट वेल्थ मैनेजमेंट में आना चाहता है, व्हाट इज योर 2 piece एडवाइस टू हिम? क्या करना चाहिए? व्हाट कैन वी डू राइट टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर? ऐसे किसी भी बिजनेस में मेरे को लगता है 3 चीज़ें होती हैं, स्पेशली सर्विसेज बिजनेस में: people, culture and capital. एंड चौथी चीज़ शायद अब मैं ऐड कर दूंगा, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स कॉल इट T square C square. T square C square. T square C square मतलब टैलेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कैपिटल। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कैपिटल। तो अगर आपको लगता है कि आप ये चारों चीज़ों में महारत है आपकी, या आप ये सब आपकी टीम ये सेट कर सकते हैं, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना, उन लोगों को एक साथ जोड़ के काम करना, दैट इज़ द कल्चर। कल्चर क्या है? एक डायरेक्शन में जाना और सब लोग एक ही तरफ जोड़ लगाएं, अलाइनमेंट। ये है आपका कल्चर। और पर्पस का मतलब एक तो अच्छा पर्पस भी होना चाहिए ना, कि अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाने का मन भी तो होना चाहिए तभी लोग जाएंगे। Absolutely. तो गिविंग देम अ पर्पस एंड अलाइनिंग देम इन द सेम डायरेक्शन, आई थिंक दैट इज़ द culture part. And adequate resources. Now I do think with very small resources wealth management cannot be done. It is a game of technology, it is a game of people, it is a game of capability. The entry barriers have gone up. So I highly advise people, if you really want to start a business, think about raising a lot of capital before you get in. Otherwise a boutique advisory firm can be set. I think now it's a very regulated, very compliant, very strong entry barrier business. So you need a lot of all these 4 things. And for students who are aspiring to prepare for the wealth management industry? Okay, so I heard your question earlier as people who are wanting to be wealth management. Invest a lot in 2 things: finance and AI. अब आपकी knowledge, it's not adequate, it's very critical to understand valuations, to understand investing, to understand behavioral finance and the core rigors of finance, right? Everything related with finance, it's critical because knowledge levels have to be much higher. Like I was saying, the sophistication level and having a global perspective. I think it's equally important now. You can't just think local. Having a global perspective is important. So to read a lot about the global economy, because all of them are so now interlinked. But the second, equally important, and I think this is where a lot of youngsters are making a mistake. You have to be terribly good at AI. There is no game. Trust me, if you are not upping your game on AI, you are out. 5 years, 10 years out, you have no chance of being a successful finance professional. It's not on the table. Thank you so much, Nitin, for your thoughts. And I think our viewers are going to take back some very valuable insights from the discussion we have today. Oh, it is such a pleasure, Dr. Chiru. Always. Thank you. Thank you. Thanks. For all our viewers, thank you for joining us on today's episode of Wealth Wisdom. It's been an insightful conversation exploring the world of wealth and asset management and an increasingly imperative role of AI in shaping the future. Stay tuned for more thought-provoking discussions and valuable knowledge bites in the episodes to come. Until next time,
Take care.